Hello students, today we have started about chemical kinetics part 4 order of reactions in detail. देखिए order of reactions में first पढ़ेंगे what is order of reaction, how to determine order, what are its characteristic, and after that types of order of reactions. देखिए first चलते हैं what is order of reaction. Suppose a chemical reactions AA plus PB it gives product capital A capital B reactants small ab its stoichiometric coefficients according to rate law. What is rate is proportional to concentration of A raised to power A है क्या नहीं, यहाँ पर क्या लेते हैं हम P experimentally determined quantity into concentration of B raised to Q. If proportional sign replaced by equal take constant K, concentration of A raised to P, concentration of B raised to Q, rate law expression. Here what is P order with respect to A, what is Q order with respect to B, and overall order of reaction. Suppose order of reaction denoted by N, what is P plus Q, sum of power of concentration terms involved in the rate law expression, that is called order of reaction. तो ये कंसेप्ट यहां से हम इसका लिखेंगे डेफिनेशन. व्हाट इज डेफिनेशन? सम ऑफ power of concentration terms involved in the rate law expression is known as order of reaction. क्या लिख सकते हैं? Sum of power of concentration terms involved in the rate law expression known as order of reaction. This is about definition and this is the explanation for that. Next, what are the characteristic of rate of order of reaction? Second point, what are the important characteristics of order of reaction? देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रिक वर्ड ले लेता हूँ, D E N T P and 3. We have to write these 5 important characteristics for order of reaction. D for definition, E for experimental, N for nature, T for temperature, P for pressure, and 3. Order of reaction 3 एक important concept है. Okay? तो first characteristic, definition, as it is लिखेंगे. Sum of power of concentration terms involved in the rate law expression is known as order of that reaction. Second characteristic, देखिए यहाँ पर P and Q theoretical concept or experimental? Yes, A भी theoretical, but P Q are experimentally determined quantity. अगर ये experimentally determine हुआ तो order भी क्या हुआ? Experimentally determined. Second characteristic, order of reaction is experimentally determined quantity. It is means order experimentally determined quantity. Characteristic number 3, nature. ये क्या क्या हो सकता है? ऑर्डर में भी जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 इसको कहते हैं इंटीजर, या फिर 1/2 2/3 3/4 फ्रैक्शनल, तीनों नेचर हो सकता है. ऑर्डर में भी जीरो, कॉम इंटीजर, इवन fractional. It may be means order may be
0, इंटीजर और इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है. ओके, एग्जाम्पल जब लेंगे हम उसमें समझेगा आपको. 0 पे ऑर्डर मिल सकता है, इंटीजर भी मिल सकता है, या फिर फ्रैक्शनल भी. नेक्स्ट, टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड होगा कि इंडिपेंडेंट. देखिए सीधी सी बात है, रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर भी तो इंपॉर्टेंट है. पावर मतलब ही क्या हुआ, ऑर्डर. तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इफ टेम्परेचर एंड pressure changes, rate also vary. Means rate depend on temperature and pressure. Hence order also depend on temperature and pressure. तो फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे हम? It changes with change in temperature and pressure. रीजन क्या दे सकते हैं आप इसको? Rate depend on order. Rate also depend on temperature and pressure. If this varies, rate also varies. Rate varies, order also varies. Next one, last one about 3. देखिए order of reaction 1, 2, 3 ऐसे हो सकते हैं. मैंने कहा there are very few examples which having order 3. तो order of reaction 3 होने वाले examples नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं, और 3 से ज़्यादा भी बहुत ही कम पाए जाते हैं. कोलिजन थ्योरी इसका एक्सप्लेनेशन देता है. जैसे दो मॉलिक्यूल्स आप कोलाइड कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन मान लो 3 मॉलिक्यूल्स, ये एक ही वक्त तीनों का कोलिजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है ना. अगर 4 ले लिए तो चारों का कोलिजन एट ए टाइम और डिफिकल्ट हुआ. तो एट ए टाइम दैट इज साइमल्टेनियसली कोलिजन ऑफ 3 और मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स इज रेयर कंडीशन. सो दैट लास्ट पॉइंट पे हम ये लिखने वाले हैं, ऑर्डर 3 की रिएक्शंस बहुत कम है, और 3 से ज्यादा ऑर्डर वाली रिएक्शंस तो बहुत ही कम है. वेरी फ्यू रिएक्शंस ऑफ ऑर्डर 3 आर नोन. ऑर्डर हायर देन 3 सच रिएक्शंस आर स्कैंटी. स्कैंटी मतलब बहुत ही रेयर, बहुत ही कम है. दिस इज लास्ट कैरेक्टरिस्टिक. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 are very few. Order higher than 3 such reactions are scanty. Scanty मतलब very very small amount, जिसको हम तेल पे कहते हैं, बहुत ही कम. This is about characteristic of order of reaction. तो ऑर्डर स्टार्ट किया हमने, डिफाइन किया एक्सप्लेनेशन के साथ. दिस आर द 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब अपने को सिलेबस में 0 ऑर्डर रिएक्शन डिटेल में डिस्कस करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिटेल में डिस्कस करना है. सीडो फर्स्ट ऑर्डर भी है, लेकिन डेरिवेशन के तौर पे अपने को ज्यादातर कौन सी इंपॉर्टेंट है, 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर. आउट ऑफ दैट 2 रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी हैव स्टार्ट. अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. देखिए कंसेप्ट. सपोज रिएक्शन हमने कंसिडर किया, रिएक्टेंट ए इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट. रेट लॉ कैसे होगा इसको, बाय रेट लॉ. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट टू पावर 1. यहाँ पे कोएफिशिएंट कोई भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 1 है तो 1 लिया हमने. ये 1 कहाँ से आया, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी. अगर मैं यहाँ पर n भी लूँ तो यहाँ पर 1 लिखेंगे हम, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अंडरस्टैंड, यहाँ पे 1 है इसलिए 1 नहीं लिखा. ये 1 कहाँ से आया, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से. रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए. कितना पावर है इसका, 1.
तो order becomes 1. What is definition? When rate of reaction is proportional to first power of concentration term of reactant is known as first order reaction. When rate of reaction is proportional to first power of concentration of reactant is known as first order reaction. तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, ये डेफिनेशन. अब ये जो रेट है, यस, इसको मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ. कैसे? और रेट याद कीजिए, फर्स्ट लेक्चर क्या था? डिफरेंशिएटल रेट लॉस, डी बाई डी टी. ए का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखेंगे, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, सो दैट वी टेक ऑलवेज नेगेटिव साइन. तो रेट आल्सो राइट एज माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे भी लिख सकते हो. थर्ड पॉइंट, एग्जाम्पल. यहां पर लिखा हमने डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट. ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल. NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट. जब इसको आप हीट करते हो, N2 निकलता है यहां से, N प्लस N, N2 प्लस 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ 2 वाटर. यस, rate of this reaction directly proportional to concentration of ammonium nitrate with power 1. फिर से वही बात, यहां पर 1 कोएफिशिएंट इसलिए 1 नहीं आया, 1 is from experimentally determined quantity. तो आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे रिएक्शन देंगे, रेट लॉ देंगे और सवाल करेंगे आपसे व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आराम से बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1. तो बोर्ड के लिए आपको कोई तो एक दो एग्जांपल याद चाहिए, जैसे हमने एक एग्जांपल आपसे ये लर्न करवाया. कंसेप्ट, डेफिनेशन, एग्जांपल. अब देखिए, ये जो लिखा हमने, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग रेट लॉस. डिफरेंशिएटिंग रेट लॉ, बिकॉज डी बाई डी टी मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी. डेरिवेटिव का प्रेजेंस है इसमें, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएटिंग रेट लॉ. अगर इस डिफरेंशिएटिंग रेट लॉ का मैं इंटीग्रेशन लेता हूं, तो थोड़ा मैथमेटिक्स का कोई इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बेसिक पता चाहिए. ओके, तो डिफरेंशिएटिंग रेट लॉ का अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो अपने को जो एक इक्वेशन मिलेगा फाइनल, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ. व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ? डिफरेंशिएटिंग रेट लॉ को जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ.